السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 936واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، مہاراشٹر کے کچھ علاقوں کے اندر، خاص طور پہ پچھم مہاراشٹر کا جو ساؤتھ کا ایریا ہے، شدت کی بارش ہو رہی ہے۔ سانگلی، میرج، کولہاپور، اچل کرنجی اور اس سے لگ کر کرناٹکا کا جو باگل کوٹ اور بیلگام کا علاقہ ملا ہوا ہے، وہ پورا کا پورا پانی میں ڈوب چکا ہے۔ ندیوں کا ڈیم، اصل میں یہ پرابلم کیوں ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک تو بارش برس رہی ہے اور پورے پہاڑی علاقوں کے اطراف کا جو پانی ہے وہ ڈیم میں جمع ہوتا ہے۔ اب یہ ایریے میں بڑے بڑے ڈیم ہیں۔ پونا کے اندر بھی جو صورتحال پیش آئی تھی وہ صرف بارش کی وجہ سے نہیں، ایکچول میں کھڑک واسلا ڈیم ہے، ڈیم پورا 100% بھر گیا، چھلک گیا، اوور فلو ہو گیا۔ اب ڈیم کے جب دروازے کھول دیے تو جو ندیاں شہر کے بیچ میں سے بہتی ہے اس میں پانی بہنے لگا۔ اب وہ پانی جو ہے اطراف کی جو بستیاں ہیں، جھوپڑ پٹی ایریے ہے، جو مکانات ہے، جو سوسائٹیز ہے، ان میں گھس گیا۔ بڑی بڑی سوسائٹیز 2 فلور تک وہ پانی کے اندر آ گئی۔ ایسا ہی حال جو میرج میں، سانگلی میں، اچل کرنجی کے اندر اور یہ علاقوں میں کولہاپور وغیرہ میں جو ہو رہا ہے، ایک تو اوپر سے بارش برس رہی ہے، پھر دوسرے جو ہے ندیوں کے جو ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ اوور فلو ہو رہے ہیں، وہ ڈیم کھولنا پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ڈیم نہیں کھولیں گے تو پریشر سے جو پہاڑوں کا پانی ہے وہ ڈیم میں اتنی شدت کے ساتھ میں آ رہا ہے کہ کہیں ڈیم کی دیواریں نہ ٹوٹ جائے۔ اس وجہ سے ڈیم کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اب جب ڈیم کے دروازے کھولے جا رہے ہیں تو جو پانی شہر کے بیچ سے جا رہا ہے پھر وہ شہر میں پھیلنا شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے میرے محترم دوستو، اس کی وجہ سے روڈ، راستے، بریجز، اب جو بریج ہے بنے ہوئے بڑے بڑے ہائی وے، پونا بنگلور ہائی وے، یہ پورے پٹے میں سے گزرتا ہے۔ اب یہ پورے علاقے سے وہ ہائی وے گزرتا ہے اور اس کے جو ندیوں کے بریج بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر سے پانی جا رہا ہے۔ تو پھر ٹریفک والوں نے جو ہے ٹریفک کو روک دیا۔ اب اتنا بڑا ہائی وے ہے، جام لگا ہوا ہے، لوگ روڈ کے سائیڈ میں اپنی گاڑیاں کھڑے کر کے رکے ہوئے ہیں، پانی کے رکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سارے جو حالات ہیں میرے محترم دوستو، میں نے 2 دن پہلے بھی بتایا، کل کے سبق میں بھی بتایا کہ یہ مسلمانوں کے اپنے اخلاق اور اپنے حسن سلوک کو لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے کا موقع ہے۔ اور واقعی میں بھی میرے دل کی گہرائیوں سے دعا نکل رہی ہے ان سب کے لیے جو ہماری مسلمان تنظیمیں، جو فاؤنڈیشنز اور جو نوجوان روڈوں کے اوپر، ہائی وے کے اوپر ماشاءاللہ لوگوں کو جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، ٹریفک والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جو ٹرک والے ہیں اور جو گاڑی والے ہیں، جو روڈ پہ ہائی وے پہ جام ہو چکے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مدرسے والوں نے بھی اپنے مدرسوں کے دروازے کھول دیے، اور واقعی میں یہ اصلی اخلاق یہی ہے کہ کھول دو، اپنے مسجدوں کے دروازے کھول دو، اپنے مدرسوں کے دروازے کھول دو۔ یہی اخلاق دکھانے کا وقت ہے۔ مسجدوں کے اندر ہماری مسجدیں ناپاک نہیں ہوں گی۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان بھی جب مدینہ آتے تھے تو مسجد میں ہی رکتے تھے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے تھے وہ بھی مسجدوں میں قیام کرتے تھے، اور یہود بڑے بڑے ان کے سردار بھی جو مدینہ میں آتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی وہ صرف مسجد نہیں تھی، وہ آپ کی مسجد بھی تھی، وہ آپ کا مدرسہ بھی تھا، وہ آپ کا مکتب بھی تھا، وہ آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، وہ آپ کا ایک ٹریننگ کیمپ بھی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی ایک جگہ بھی تھی۔ مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں ہم لوگوں نے مسجد کو ایک الرجیٹک چیز بنا کے رکھ دیا ہے۔ نماز ہو گئی، اس کے 10 منٹ بعد مسجد کے گیٹ، مسجد کے دروازے بند۔ ہم نے ایسا کر دیا مسجد کو کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو آج ہدایت سے محروم ہیں وہ صرف ہمارے مسجدوں کو تالے مارنے کی وجہ سے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے
मैंने प्रैक्टिकल मौलाना के सामने ये बात सुनी हुई है। मौलाना को इतनी नफरत थी उन लोगों से जो मस्जिद के अतराफ में दुकानें बनाकर मस्जिदों को ताले मारते हैं और मस्जिदों की दुकानें किराए पे चढ़ा देते हैं। मौलाना को तो उससे भी गुस्सा था। हमारे मौलाना फरमाते थे, बोलते थे, देखो ये चर्च वालों को देखो, आपको उनके चर्च में कभी भी जो है ऐसी दुकानें नज़र नहीं आएंगी। दूसरी कौमों के जो इबादत खाने हैं कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि नीचे पूरी दुकानें बनी हुई है और ऊपर इबादत खाना है। लेकिन मुसलमानों, तुमने अपने मस्जिदों को भी तिजारत का ज़रिया बना दिया, उससे भी पैसा कमाने लग गए तुम। मौलाना को शिद्दत के साथ में चिढ़ थी ये बात की, और इस बात से भी मौलाना गुस्सा होते थे जो मस्जिदों को ताले लगाए जाते थे। आज जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हालात ऐसे हैं, मुसलमानों को समझना चाहिए। ये बहू बना के रख दी है मुसलमानों ने, लोगों के लिए एलर्जेटिक चीज़ बना के रख दी है कि मस्जिद में इसने नहीं आना, उसने नहीं आना। अरे ऐसा मत करो। मैं तो ये कहूँगा, ऐसे हालात के अंदर मस्जिदों के दरवाजे खोलो और ये जितने हमारे बिरादरान वतन हैं, जिस तरीक़े से वो मदरसे वालों ने किए, मैंने कुछ मदरसों की तस्वीरें भी देखा, माशाल्लाह दिल की गहराइयों से वो मदरसे के मैनेजमेंट्स के लिए दुआएं निकली। ख़ास तौर पे मुझे दारुल उलूम शिरोली का याद है, उनकी तस्वीरें मेरे नज़र में आई। उनके अलावा भी मस्जिदें मैंने देखा, हमारे यहाँ पूना के अंदर कुछ साथियों ने हमारे मस्जिदें भी खोल दिए, माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है वो साथी। इसी तरीक़े से बाज़ इलाक़ों के अंदर जो मदरसे के तलबा भी इस खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। ये हमारा काम है, यही वक्त है इंसानियत दिखाने का। नहीं तो क्या फ़ायदे की है हमारी 10-10 करोड़ की मस्जिदें खड़ी हुई है जो उम्मत के काम ना आए, जो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा ना पहुँचाए। तो फिर फ़ायदा क्या है? 2 रकात नमाज तो हमारी घर की 4 दीवारी में भी हो जाएंगी, घर की चटाई के ऊपर भी हो जाएंगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, ये वक्त हुस्न अखलाक का है। ख़ास तौर पे वो सारे इलाके जो पानी में डूबे हुए हैं, सांगली, मीरज, इचलकरंजी, कोल्हापुर, अतराफ़ के जो इलाके हैं, मुदोड़ से कुछ लोगों का कल मैसेज आया था, बागलकोट का जो पट्टा है, बेलगाम का जो इलाका है, हाईवे से जो गुज़रने वाले लोग हैं, अखलाक दिखाओ उनको, अपना किरदार दिखाओ। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो अखलाक और किरदार दिखाने वाले हैं, हमारे हर नौजवान के ऊपर सर पर सफ़ेद टोपी होना चाहिए। हमारा हर वॉलंटियर, हमारा हर बच्चा जो इस तरीके की खिदमत में लगा हुआ है, उसके सर पे सफ़ेद टोपी होना चाहिए, ताकि उसकी टोपी देखकर दुनिया को ये पैगाम पहुँचे, ये खिदमत करने वाला कौन है? साहिब ईमान है, ईमान वाला है। ये अपने ईमान वाला होने की जो अलामत और निशानी है, सर पे रखो उसको, उसके साथ में ये सारी खिदमत करो, क्योंकि ये अखलाक तुमको दिखाकर लोगों के दिल में घर करना है, जगह करना है। तो उनको ये पता भी होना चाहिए हमारे साथ ये अखलाक और किरदार का जो मुआमला करने वाले हैं, ये कौन लोग हैं बोलकर। इसके लिए और दूसरी चीज़, अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा, दूसरा पहलू, दूसरा साइड बताऊंगा, तो शायद जो इलाके बारिश में डूबे हुए हैं उनको हैरत होंगी कि कुछ इलाक़ों से ये भी दरख्वास्तें आ रही है, वहाँ बारिश बरसने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र के ही इलाके हैं, महाराष्ट्र में ही कुछ इलाके ऐसे हैं बारिश बरसने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लोग दरख्वास्तें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पर मेरी जो पोस्ट है उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं है बारिश, क्यों नहीं बरस रही है। उस इलाके का मेरा सफ़र होया हुआ है, उस इलाके के एक एक गांव, देहात और शहर कस्बे को मैं जानता हूँ। वहाँ का एक मिजाज बना हुआ है कि लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालते। मैं साफ़ लफ्ज़ों में कहता हूँ, बड़े बड़े जो है वहाँ पे आपको अकाबिर मिलेंगे और दीन की बातें मिलेंगी, सब मिलेंगा, लेकिन खेती बाड़ी की जो पैदावार है, मुसलमान 1.5, 2, 100 एकड़ ज़मीन के मालिक है, बागात है उनके पास में, बड़े बड़े मल्ले हैं उनके पास में, आमदनी करोड़ों में हो रही है। तो उस इलाके के मुसलमान क्या समझते हैं कि अपने मस्जिद में जो जमात आ गई उसको खाना खिलाओ, बस हो गया, अब हमने हक़ अदा कर दिए। एक आधे मदरसे वाला आया, उसकी 150 की पावती बनाओ, हो गया, हमने ज़कात का हिसाब कर दिए, उशर का हिसाब कर दिए। जान पहचान का कोई मदरसे वाला है,
اس کو کوئنٹل 2 کوئنٹل गेहूं जवारी भेज कर दे दो, या किलो 10 किलो दे दो, बस बस हमने उशर निकाल दी अपना। ऐसे से उशर अदा नहीं होता। उशर और ज़कात अपने उलामा से, अपने मुफ्ती, अरे एक एक पैसे का पूरा हिसाब करके, खेती बाड़ी है उसकी ज़कात अलग है, तिजारत है उसकी ज़कात अलग है, आप मुलाजिमत करते हैं उसकी ज़कात अलग है, ताजिर है उसकी ज़कात, अरे हर चीज़ की ज़कात एक एक रुपये का हिसाब करके ज़कात अदा करो। ये तुम जो दे रहे हो ना ज़कात, अल्लाह तुमको वापस देगा। एक बात याद रखो, हाँ ये वापस मिलेंगी तुमको। और हदीस है, मैंने इस पे पूरा जुमा का बयान किया हुआ हूँ जून के शुरू में ही, वो बयान यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। अब भी इसी साल की बात बता रहा हूँ मैं, रमज़ान के बाद, कि बारिश क्यों नहीं बरसती है। तुम कितनी भी पढ़ो नमाज इस्तिस्का, बारिश नहीं बरसेंगी। तुम्हारे इलाके का कितना भी बड़े से बड़ा अकाबिर बुजुर्ग रहने दो, उसका 12 फीट का रूमाल, अब 50 फीट का जो है गोधड़ा, नहीं बरसेंगी बारिश जब तक कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करोगे। ये मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फरमाया जो कौमें ज़कात को रोक देती है, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर बारिशों को रोक देता है। इसलिए मुसलमानों, जब तक ज़कात नहीं दोगे ना, खाली जमात को खाना खिलाने से ज़कात अदा नहीं हो जाती, सदका पूरा नहीं हो जाता, किसी मदरसे में 10-15 किलो गेहूं जवारी देने से ज़कात नहीं अदा हो जाती, किसी मदरसे की 150 की पावती बनाने से ज़कात नहीं। ज़कात एक एक रुपये का लिख कर हिसाब करके निकालनी पड़ती है। और जो लोग इस तरीक़े से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अल्लाह का मुआमला उनके साथ में कैसे होता है, मेरे साथ प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। मैंने रमज़ान के एक जुमा के बयान में कहा, मैंने कहा लोगों, जिन इलाक़ों में पानी की तकलीफ़ है, उन इलाक़ों के अंदर अपने पैसों से, अपने ख़र्च से जो है लोगों को पानी पिलाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी किसान हूँ, शेतकरी हूँ मैं, मेरी भी खेती बाड़ी है। तो मेरे भाई है, उन्होंने मुझसे कहा मौलाना गवर्नमेंट की तरफ से तुमको अनुदान आया हुआ है, तुम्हारे अकाउंट के अंदर इतने इतने हज़ार रुपये है। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा गवर्नमेंट का अनुदान लेकर। वो पैसे जो है ना, एक काम करो, वो पूरे पैसों में रोज़ाना पानी मंगाओ, पानी मंगा के लोगों में तकसीम कर दो। ये सदका ज़कात नहीं है, अपनी हलाल की कमाई है, किसी को भी पिला सकते। अब हमारे भाई साहब ने वैसा ही किए, और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान में जितने पैसे आए थे वो पूरे पैसे उन्होंने वो पानी के अंदर ख़र्च कर दिए। अब मेरे पैसे तो चले गए, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला का जो मुआमला है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अल्लाह जो है ना, अल्लाह वो इतने गय्यूर है, गैरत वाले है, वो कभी भी ये गवारा और बर्दाश्त नहीं करते कि मेरा एक बंदा मेरे नाम पे ज़कात दे रहा है या सदका दे रहा है या माल खर्च कर रहा है तो मैं उसको दुनिया और आखिरत में उसका बदल ना दूँ। अब भी 2 हफ्ते पहले वापस मेरा गांव की तरफ सफ़र हुआ, हमारे उसी भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा, अरे बोले मौलाना वो तुम्हारे अनुदान के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से वापस से पैसे आ गए। अल्लाहु अकबर, वापस से आ गए? हाँ बोले, वो अनुदान जो है ना, पहला जो तुम्हारा आया था तुमने वो पूरे पानी में खर्च कर दिए। उसके बाद अब भी मेरे को 2 दिन पहले पता चला कि दूसरी जो लिस्ट आई उसमें भी तुम्हारा नाम है और उसमें भी इतना इतना पेमेंट, यानी जितना हमने खर्च किए थे सेम टू सेम उतना ही अमाउंट वापस से अकाउंट में आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है अल्लाह ताला का निज़ाम। ये वाक़या जो है ना, ईमान को ताज़ा करने के लिए काफ़ी है। मेरे तो वहम व गुमान में भी नहीं था। मैंने कहा जो आए वो खर्च कर दो, वो पूरे खर्च कर दिए। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चल रहा कि वापस से और पैसे आ गए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर आपको बुखार आया हुआ है तो उसके लिए आपको पैरासीटामोल की टैबलेट लेनी पड़ेंगी तो बुखार दूर होगा। अगर आप सोफ्रामाइसिन क्रीम पूरे बॉडी पे रगड़ते रहोगे ना, बुखार दूर नहीं होगा उससे। क्यों? वो क्रीम तो ज़ख़म के लिए है, बुखार के लिए तो टैबलेट लेनी पड़ेंगी। ऐसा ही
اس علاقوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں نماز استسقا پہ استسقا ہو رہی ہے. آج یہ ہمارے بزرگ نماز پڑھانے والے ہیں. لاؤ نا، آپ کس کو لاتے نماز پڑھانے کو؟ لے کے آؤ. نہیں برسیں گی بارش. کیوں؟ اس کا علاج میرے آقا 1450 سال پہلے بتا کر گئے، زکوٰۃ دو تو بارش ہوں گی، کتنی بھی نمازیں استسقا پڑھو نہیں ہوں گی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، جو بیماری ہے پہلے اس کا علاج کرو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علاقے بارش سے متاثر ہے، جیسا میں نے بتایا، سروں پہ ٹوپیاں پہنو اور دل کھول کر اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کا مبارک دن ہے. سورہ کہف ضرور پڑھو اور چلتے پھرتے درود شریف یاد سے پڑھنا.